Hello friends, hello students. Welcome to CLAT IQ. Hi everyone. Let's in this session today we are going to discuss about CLAT 2028 जो कि आपका दिसंबर 2027 में होगा. So we are going to discuss how you can make a 12-month preparation roadmap and actually prepare better in advance for the exam. So CLAT IQ में बच्चों we are going to start a 12 months preparation program. So ये वीडियो उसी प्रोग्राम का एक रोड मैप है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं अपनी प्रिपरेशन में then you have to फॉलो द 12 मंथ रोड मैप. एंड इस प्लान को ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है एंड आई हैव डेवलप्ड. सो इस प्लान को अगर कोई भी बच्चा फॉलो करेगा इवन इफ वो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से है सीबीएसई बोर्ड से है बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट इन क्लैट एग्जाम it's really difficult if you are from UP board or other state board exam. So this 12-month preparation roadmap is only for students who want to start preparation in advance, and they can join us whether you are in class 11th right now or in just completed your class 10th. You can join us in this roadmap. क्लैट IQ बच्चों बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव 1 ईयर प्रोग्राम चलाने वाला है. हम लोग ये बैच शुरू करने वाले हैं 2028 का. इसमें हर दिन आपकी क्लासेस होंगी रीडिंग की, न्यूज़पेपर रीडिंग की, जीके की, एंड ऑल्सो वी विल हैव मोर मैथ्स ओरिएंटेड क्लासेस, ऑल्सो क्वांट ओरिएंटेड क्लासेस जिसमें बच्चों के मार्क्स अक्सर रह जाते हैं. सो हमारा प्लान ये है कि इफ़ यू आर गोइंग टू ज्वाइन अस in this comprehensive program, so by the December 2027 you will be able to crack CLAT और बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप हमारे साथ आगे बढ़ सकते हो. बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आप टॉप 3-4 NLUs जा सकते हो एंड यू कैन टेक अप a corporate package of almost 15 to 20 lakh rupees, or you can start your career in litigation in a top chamber. So this program is especially for students who are from humanities backgrounds, commerce background, and they are really having no clue what to do after their 12th. A basic BA or a BCom degree can be good, but if combined with a LLB from a NLU, definitely that is going to give you a upper hand in the job market. So in this video we are going to discuss about that. And CLAT IQ बहुत ही एक comprehensive program लाया है, and you can join us, you can call us on our phone number. And yes, let's begin how we are going to prepare for 2028. So students, the roadmap which we usually talk about for the CLAT for 1 year is in 4 parts. Every part is of 3 months. Every part is of 3 months. For your 12-month journey, you have to divide your preparation into 3 months, 4 parts. Okay. The first can be you building your habit of reading newspaper from in the starting months. The CLAT, if you know, is a very reading comprehensive exam. So you should be really good at reading, able to understand the fundamentals of reading, and you should also have a passage fluency. Okay, these are the basic things and which usually come with when you are
reading newspapers daily. We will discuss the 6 habits which are going to help you, but always remember that our strategy of teaching students and preparing them for the CLAT exam in the CLAT IQ is only not giving them lectures and classes, but it's divided into 3 to 4 parts, and we are going to comprehensively deal with it. Then we will also have to work on practicing exams and questions which usually comes. Okay, then we have to also in the further phase of our preparation, we have to work on the speed, accuracies, and we and the passages which are very hard. So we will have to work on that also. Okay, let's move on to the last one. Will be see, even if we are prepared well and we are not able to get a good rank in the exam, so that is not the right thing. I believe that first 9 months we will be working on our skill, but the last 3 months in the CLAT IQ we are going to help you out to how to improve your rank. Because if you are going to score a 3-digit rank, you will be sure shot selected for any of the top NLUs, and with the God grace and a good hard work, you can also get a 2-digit and 1-digit rank also. So let's see the second part of this. See, so students, to crack CLAT exam, there are these 6 basic habits which you should be having. So in all my videos, I usually tell students that do not start without any guidance. First, start believing in these 6 habits. The number 1 is newspaper. Newspaper, almost 30 to 40% of your paper is coming from the newspaper itself, be it legal, be it GK, even the English passages are also from the newspapers. Okay, so newspaper reading is must, and I'm not saying you have to read newspaper for 2 hours every day. No, that is not going to be very beneficial in the starting phase, और बच्चों आप लोग exhaust हो जाओगे बहुत ही जल्दी. So I would suggest only read newspaper for 30 to 45 minutes. Take a break, study only for like 15 minutes or 20 minutes, then take a 10 minutes break, and then again read another article. Okay, so whenever you are reading, you have to also speed your time also. There should be time up also, because see, you cannot read a small passage for an hour. Okay, you have to be very quick at reading. So you should also check the timing, how much time you are taking to read a small passage. So always have a watch. I tell you that always have a watch, and keep a note of the time, that how much you are reading. Okay, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशंस आपके न्यूज़पेपर से काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे. वो क्या, न्यूज़पेपर में यू विल फाइंड न्यू वर्ड्स. You will be also working on your current affairs. If you are reading newspaper, you will be obviously seeing better current affairs directly from there. You won't be then looking for some kind of magazine or anything. Then obviously newspaper reading also develops your critical thinking. Okay, so that is a must. So the number 1 habit should be to read newspaper for at least 30 to 45 minutes. Next, whatever new words you are finding in the newspaper, you can take it out and write in a different copy, which will be your vocab copy, and it is very important, because by the end of your preparation, if you will be keep doing it, you might be having a bank of 10,000 to 5,000 English words. Some might be repetitive or new, depending upon how much
how much words you know. Okay, that is also a thing, but I would say every day try to capture 10 to 12 words, but I would suggest 30 words every day is a good number. If you want to perform better than others, 30 वर्ड्स आपको पर डे निकालने चाहिए न्यूज़पेपर में से या डिक्शनरी में से, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आपको उसके सिमिलर वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, वो जो भी मीनिंग्स और वर्ड्स आप ढूंढ रहे हैं, यू शुड ऑल्सो एबल टू फॉर्म सेंटेंसेज आउट ऑफ इट, और इवन रिलेटेड वर्ड्स। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये दो हैबिट तो हम लोग को ध्यान रखनी ही रखनी है। इसके बाद आ जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपका न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से हो सकता है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं तो यू कैन ऑल्सो गो टू आवर वेबसाइट CLAT-IQ and you will find daily updated current affairs from there also. You can also connect with us, और यहाँ पे भी we can provide you the current affair materials जो कि we have prepared. Okay, so that is the thing. After that, see, if you are reading newspaper, that is not enough, because sometimes the newspaper language is very difficult. So start reading books which are very easy read. After reading books, you should also read some legal news channels such as Live Law. If you know Live Law, you should read articles from here also. Bar and Bench. So students, you should be using Bar and Bench and Live Law to read small articles, so that your legal knowledge should also keep increasing. अगर आपकी जो लीगल नॉलेज है ना वो बढ़नी चाहिए, इसलिए हमें ज़रूरत है आप कुछ और भी पढ़ें अदर देन द न्यूज़पेपर्स, ठीक है। सो दैट कम्स, आपका ओपिनियन बनेगा। सो इफ़ देयर इज़ एनी टॉपिक, अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी पता चलेगा तो वो आपको न्यूज़पेपर में टॉपिक के बारे में तो पता चल जाएगा, पर उसका लीगल कॉन्टेक्स्ट, वो लीगली कैसे अप्लाई होता है, व्हाट इफेक्ट इट हैज़ ऑन द लाइफ्स ऑफ कॉमन सिटीजन लीगली, तो यू हैव टू फाइंड दैट, और उसके क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी न्यूज़ के। तो बच्चों वो आपको लाइव लॉ और बार एंड बेंच की वेबसाइट्स पे मिलेंगे, आप वहाँ से जा सकते हो और एक उस आर्टिकल को सर्च करके उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में सर्च करके आप पढ़ सकते हो। देन अगर आप इतना कर ही रहे हो, देन यू शुड सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश फ्रॉम पास्ट ईयर्स ऑफ लीगल, लॉजिकल, नॉट एवरी डे बट वन सब्जेक्ट अ डे। मंडे को आपने इंग्लिश कर लिया, ट्यूसडे को आपने लीगल कर लिया, वेडनेसडे यू सॉल्व लॉजिकल, देन क्रिटिकल रीजनिंग भी आपकी क्लैट में आती है तो आपने थर्सडे को वो कर लिया, देन फ्राइडे रिवीजन कर लिया सारे वर्ड्स का, जितने भी आपने वोकैबुलरी में वर्ड सीखे उनका रिवीजन किया, ठीक है। संडे आपने न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का रिवीजन किया। तो ये बेसिक है, यू डू नॉट हैव टू लोड योर सेल्फ विद लॉट ऑफ वर्क, बट हाँ 30-40 मिनट्स रीडिंग कर ली, उसके बाद 5-10 मिनट एक आर्टिकल पढ़ लिया, 30 मिनट्स आपने लेके वो कैब के कुछ वर्ड्स बना लिए, उसके बाद आपने कुछ रिवीजन किया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हार्डली यू आर टेकिंग 3 to 4 आवर्स। ओके, 3 to 4 आवर्स ये कॉमन हैबिट जो आपको डेली है, इसको ये अदर देन योर स्टडी पार्ट है, ये आपको डेली करनी ही पड़ेगी, एटलीस्ट करनी पड़ेगी। एंड व्हाट वी कैन डू इन CLAT-IQ, वी कैन हेल्प यू, तो ये टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। आप यही चीज़ हमारे साथ 2 आवर्स में कर सकते हो। अब हमारी क्लासेस होती हैं न्यूज़पेपर रीडिंग्स की, आप वो ज्वाइन करोगे, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग्स हो जाएगा, उसमें से वो कैब हम आपको दिला देंगे, आप वो कैब कर लोगे, हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देंगे, हम आपको बार एंड बेंच के कुछ अच्छे आर्टिकल्स रीड करा देंगे। तो कुल मिला के जो आपको करने में एफर्ट लगता है, वी कैन हेल्प यू एंड यू कैन डू इट इन फ्यू आवर्स, विच इज़ 2 आवर्स, अराउंड 2 आवर्स में आप हमारे साथ ये कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं एरर नोटबुक।
सो वॉट एवर क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग, अगर उसमें आपको कुछ गड़बड़ लगती है, वॉट एवर वर्ड्स यू आर फाइंडिंग, अगर आपको उसके मीनिंग्स नहीं पता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ द स्मॉल फैक्ट्स ऑल्सो, तो वो सब आप इसमें नोट करिए, द स्मॉल फैक्ट्स, the mistakes which you have made in solving questions, क्योंकि आपको PYQs भी सॉल्व करवाएंगे हम लोग, तो PYQs में आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी, उन मिस्टेक्स को यू हैव टू ऐड। ओके, तो हमारे साथ हमारे कुछ PYQ सेशंस होते हैं स्टार्टिंग में, 15 to 20 सेशन, जिसमें हम लोग लास्ट 20 ईयर्स के सारे PYQ सॉल्व करवा देते हैं। 20 ईयर्स के क्लैट के तो कराते ही कराते हैं, क्लैट से पहले के जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस अपने एग्जाम्स करवाते थे बच्चों, वो भी हम लोग अपने करवाते हैं सॉल्व। तो इतना करने के बाद आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान रेडी हो जाता है हर दिन करने का। ठीक है, ये आपका बेसिक बेसिक नेसेसिटी रहता है जो आपको करने ही पड़े। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज फर्स्ट फेज में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। पहले 3 मंथ्स आपको क्लैट IQ में आपको फर्स्ट 3 मंथ्स हमारे साथ क्या करना है। हम न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर, वो कैब भी बना ही रहे हैं, वो कैब की एक कॉपी बन चुकी है जिसमें लिखा जाएगा। ठीक है, वी विल ऑल्सो हैव टेस्ट्स ऑफ वो कैब एवरी संडे। ये सेक्शनल टेस्ट होगा सिर्फ वो कैब के लिए, इसमें आपकी जितनी एक मंथ में आपने वो कैब पढ़ी होगी या एक हफ्ते में जितनी पढ़ी होगी उसका पूरा टेस्ट लिया जाएगा, जस्ट टू सी हाउ मच गुड यू आर, ओके, एंड हाउ मच यू हैव लर्न। सो फिर वी विल ऑल्सो हेल्प यू लर्न इन इंग्लिश, व्हाट इज द मेन आइडिया, क्योंकि इंग्लिश का आपको ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 25 मार्क्स। ठीक है, 25 मार्क्स। तो व्हाट इज द मेन आइडिया इन अ पैसेज, व्हाट इज द टोन ऑफ अ पैसेज, व्हाट इज द पर्पस, इन्फेरेंस कैसे निकालते हैं, इन सब पे एक एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है टाइटल पे। सो कुल मिला के देयर आर 5 to 6 क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश में आपके पैसेज में यहाँ से आते हैं। And every day we will try to, whenever we will have a English language class, English comprehensive class, we will try to teach you how to find main idea, how to find the correct tone, how to identify the purpose and inference. Okay, तो ये एक बेसिक है फर्स्ट मंथ में आपको स्टार्टिंग में। वी कैन ऑल्सो हेल्प यू एंड यू कैन ऑल्सो, आप अगर खुद से भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू टू ज्वाइन क्लैट IQ एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन विद अस, एंड जितना जल्दी हो सकेगा दैट इज़ अ बेटर प्लान, बिकॉज अभी 1 साल है हम लोग के पास, 1 साल से ज़्यादा है, तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। ओके, ये अगर आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के नवंबर से शुरू करेंगे तो नेक्स्ट नवंबर तक, अगर आप नवंबर 2026 से नवंबर 2027 तक हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो in 1 year you will be able to crack CLAT with a very good marks and with a very good rank, and that is for sure. Then the English after the English we will also have to work on the legal section. Okay, in legal section we will work on the principles, the fact, the application and the conclusion. Okay, so that is also a thing. Also बच्चों, जो क्वांट का सेक्शन होता है उसमें बेसिक मैथ्स ही आती है, 10th लेवल तक की आती है, बट बहुत बच्चों को मैथ्स से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत लोग मैथ्स से थोड़ा सा डरते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैथ्स बहुत ही ईजी आती है। अगर आप 20 छोड़िए, अगर आप 10 से 12 क्वेश्चंस भी डेली सॉल्व करना शुरू कर देंगे मैथ्स के, तो आप लास्ट
एग्जाम डे के दिन तक इतने रेडी हो जाएंगे कि यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन द क्लैट मैथ्स, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट जस्ट बिकॉज बच्चों की प्रैक्टिस नहीं रहती है, कम टाइम में प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो आप इतना अच्छा टाइमिंग नहीं रहता है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैथ्स के क्वेश्चंस वी विल आल्सो सॉल्व, वी विल सॉल्व 10 to 12 क्वेश्चन एवरी डे। तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट मंथ है ना, उसमें हम लोग थोड़ा ओवरव्यू लेंगे हर सब्जेक्ट्स का, हर सेक्शंस का, वी विल टेक द ओवरव्यू एंड वी विल वर्क अकॉर्डिंगली। लीगल के लिए we will also have to start learning about the basic principles, legal principles, and then we will move on to further, तो उनको डिटेल में पढ़ने के लिए, which we will do by the second month. Okay, second month में इंग्लिश का पैसेज आपको every day you have to solve one passage. Okay, after that we also have to practice the statements which weakens the author's argument, assumptions, inference. Okay, so these are the basic questions which are asked in the CLAT exam in English part. So we have to learn the fundamentals, how these things are happening. Okay, so that is the basic thing. Next, we have to also start working on the current affairs. फ्रॉम द सेकेंड मंथ आपको करंट अफेयर पे काम करना है। करंट अफेयर्स आप जो न्यूज़पेपर में से पढ़े, फिर उनका रिवीजन, जो लास्ट मंथ पढ़ा उसका रिवीजन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम करंट अफेयर्स पढ़ते जा रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो फॉरगेटिंग पीछे हमने पिछले मंथ में क्या पढ़ा था। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग करंट अफेयर पढ़िए, उसके बाद आपको एक तरीके से उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। और हमारे रेगुलरली वी हैव करंट अफेयर्स क्लासेस एवरी सैटरडे संडे, so you can join that also. Let's have the third month. By the end of the 2 months you will be able to understand what the exam is, what is the demand, what is the nature of the exam. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने समय के बाद भी आप परेशान हो रहे हो कि कैसे प्रिपरेशन करें और क्या करें। इसीलिए ये बेसिक फर्स्ट और सेकेंड मंथ दिए हैं ताकि आप पास्ट ईयर सॉल्व कर लो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप न्यूज़पेपर रीडिंग के हैबिचुअल हो जाओ, सो आप एक रिदम में हो जाओ पढ़ाई के। और फिर आता है थर्ड मंथ। सो थर्ड मंथ से पैसेज को थोड़ा कठिन पैसेजेस हम लोग ट्राई कर सकते हैं, जी मैट के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, कैट के ट्राई कर सकते हैं, सारे नहीं पर 1 or 2 क्वेश्चंस अगर आप लगा के सॉल्व करें, जी मैट में जिस तरह के आते हैं, कैट में जिस तरह के आते हैं, एल सैट में जिस तरीके के आते हैं, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू डू बेटर। ओके, you will perform better than other. Then legal passages, आप वही लाइव लॉ के बड़े आर्टिकल्स रीड करिए, we will also make you read them. आप लोग लाइव लॉ के बड़े आर्टिकल्स रीड करिए, जितना बड़ा आर्टिकल आप रीड करेंगे एग्जाम में आपकी हैबिट उतनी अच्छी रहेगी। और मे भी अगर आपने जो आर्टिकल्स पढ़े होंगे वही आर्टिकल एग्जाम में रिपीटेड आ गए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। वो ही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इन आवर लीगल क्लासेस वी डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स विच आर हैपनिंग अराउंड द कंट्री राइट नाउ ऑल्सो, और जो पास्ट में भी हुए हैं। सो आई कैन गारंटी दैट in our classroom discussions we do not leave even a single topic. So जो पूरा पेपर आता है वो ऑलमोस्ट हमारे क्लासरूम डिस्कशन से ही आता है। एंड आई पर्सनली टेक द लीगल क्लासेस, सो यू कैन ज्वाइन अस। एंड जो लॉ का सेक्शन है आई कैन हेल्प यू विद दैट, द इंग्लिश का सेक्शन है आई कैन हेल्प यू विद दैट। सो दीज आर द बेसिक थिंग। देन अगेन बहुत बच्चे मैथ्स से डरते हैं। मैथ्स में आपके आराम से 8 to 10, कभी कभी 10 to 12 मार्क्स आते हैं एग्जाम में, एंड यूजुअली स्टूडेंट्स इग्नोर दीज। 5 मार्क्स में यू ऑलमोस्ट स्किप 100 and 200 रैंक्स। सो आई वुड सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस, लर्न अबाउट प्रोपोजिशन, learn about mixtures, time, work, speed, distance, ratio also is there.
ओवरऑल डाटा इंटरप्रिटेशंस के जो क्वेश्चंस आते हैं डीआई के, वो आपको पहले बेसिक्स मैथ्स के समझने पड़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. ओके, so I would suggest you to do also we give you sheets also. Every day we give worksheets. So वर्कशीट जो होती हैं उनका आपको रिवीजन करना पड़ेगा. हमारी हर क्लास के बाद हम एक वर्कशीट देते हैं जिसमें जो भी टॉपिक समझाया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं. तो अगर आप वर्कशीट्स डेली सॉल्व करोगे हमारे साथ तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू इम्प्रूव. और वर्कशीट का रिवीजन्स भी होते हैं, आप भी हमारे साथ रिवीजन कर सकते हो. और वर्कशीट का सीधा सीधा फंडा ये है कि जो आपने क्लास में पढ़ा उसको तुरंत अप्लाई करके देखें. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई इट ऑन द वर्कशीट देन डेफिनेटली यू विल हैव टू वर्क अगेन ऑन द कॉन्सेप्ट. एंड टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. तो आप अपने टीचर से जाके दोबारा से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं. और जहाँ पे भी आपको लग रहा है देयर इज़ अ गैप, वी कैन वर्क ऑन दैट ऑल्सो. सो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि थर्ड मंथ से वी विल ऑल्सो स्टार्ट रिवाइजिंग द वर्कशीट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास. क्लास में हम बहुत सारी वर्कशीट्स करेंगे, वो आप डिस्कस कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज विच इज 3 months हो चुके हैं अगर प्रिपरेशन को. एंड नाउ द थिंग्स आर गेटिंग बिट हॉटर. वी हैव टू वर्क हार्ड. ओके, 4th मंथ से टाइम पे वी हैव टू वर्क इन टाइम. देखिए 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में. वी हैव 120 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स. ओके, one question is only for 1 minute. If we are losing if we are losing our eyes on the time, then we are going to definitely lose a lot of marks also. So, and the paper is so lengthy. Sometimes the paper is so lengthy that you cannot even read in 2 hours. So you have to be good at really good at reading. So when you will use time as a training variable, फॉर एग्जाम्पल जो मॉक 2 घंटे में सॉल्व होता है, इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन 1 hour 50 minutes, then you are going to actually train yourself better for the exam. I would suggest once you are done with 155, then go for 150. Once you are done with 150 minutes, go for 145. So in this way you are training yourself to solve 120 more than 100 questions in less than 2 hours. बिकॉज इन एग्जाम में बच्चों आपको OMR भी भरना रहता है. OMR भरने में इट टेक्स 15 मिनट्स. तो ऑलरेडी ही आपके पास एग्जाम में 1.45 टाइम रहता है आर का, विच इज ऑलमोस्ट 105 मिनट्स. So that's why I am telling you that try to solve mocks within 150 minutes 145 minutes, ताकि आप एग्जाम हॉल में टाइम बचा के बैठ जाएं और फिर आगे की चीज़ें देखें कि कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कौन से सही हो रहे हैं. तो कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यू हैव डन ऑलमोस्ट करेक्ट. ओके, तो ये सब चीज़ें वी विल हैव अ सेशन ऑन हाउ टू टैकल द एग्जाम. Also how to do the mocks, also how to analyze the mocks, what should be the better strategy for the exam hall for the 2 hours. But अभी के लिए you should be aware that आपको सिर्फ 2 घंटे की प्रैक्टिस नहीं करनी है. You have to practice for less than 2 hours. I would suggest 1.45 hours, which is almost 105 minutes. Okay, तो आपको आदत होनी चाहिए 2 hours से भी पहले अपना पेपर करने की, 15 मिनट पहले करने की, ताकि आप बैठ के बाकी चीज़ें कर सको. ये सब चीज़ें हैबिट आपकी डेवलप होंगी अगर आप सेक्शनल मॉक्स लगाएंगे, हमारे सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे. एवरी संडे वी विल हैव दैट. ओके, आप लीगल एप्लीकेशंस को पहले से ही पढ़ के रखे होंगे, उनकी नोट्स बना के रखे होंगे. यू माइट हैव डिस्कस्ड देम विद योर टीचर. और इतना करने के बाद
लॉजिकल रीजनिंग आपने पहले भी सॉल्व करी हो अगर हमारे साथ, पैसेज को टाइम के साथ रीड किया हो, तो दैट इज अ रियली गुड थिंग. ओके, so these are the basic. Okay, let's come to the fifth phase, fifth month. Okay, so by the month 5 you should be able to understand the editorials of The Hindu. Okay, द हिंदू के आपको समझ में आने चाहिए, द हिंदू न्यूज़पेपर के. यू कैन स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस बच्चों बहुत आसान पेपर होता है, उसकी लैंग्वेज काफ़ी ईजी होती है. आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट रीडिंग विद द हिंदू. आप द हिंदू पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि आपको 3-4 मंथ्स हो चुके हैं, तो अगर आप द हिंदू पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, you will be able to understand even the passages which are very very hard in language in the CLAT exam. You will be able to clear that also, and I would suggest you to also try to practice hidden assumptions. There are sometimes in the passages there are assumptions which are hidden. Okay, the writer is assuming things. Okay, वो आपको passages पढ़ के आएगा. इस पे we usually have a lecture. English में we keep a lecture of on how to find assumptions and also how the writer is breaking the assumptions. So you should be you will be dealt with this. Don't worry. And we will solve sectional test each week or along with the mock also, maybe on Saturday or Friday. एक सेक्शनल टेस्ट हमारा ज़रूर करना चाहिए हमें. तो ये एक बहुत ही ज़रूरी मंथ है आपके लिए. अगर आप you want to check whether in the last 4 months you have really improved yourself as a reader, as an aspirant of CLAT exam. Okay, then in the 6th month you should try to solve full mocks. Every day you should solve a full, not every day, but every 2 weeks is fine, because we are going to increase the number of mocks in the next few months. But I would suggest, if you are making guesses, you should keep a note on them. If you are doing errors and mistakes again and again, try to work on that, whatever is lacking. Okay, and also see that what are the questions, what are the subjects you are able to do without even a lot of effort. That means that is your strong area, strong zone. So always try to work on that अब good enough कि एग्जाम में अगर उसी एरिया से क्वेश्चंस आ जाएं, so आप वो पूरे मार्क्स एक तरीके से चुरा लो, तो दैट इज़ अ गुड थिंग अगर आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पता चल जाएं. और बाय द एंड ऑफ द 6 मंथ्स ऑफ क्लैट, आप 6 महीने की आपकी जर्नी तो ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो ही जाएगी. ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट 6 months. Let's move on to that. Okay. So yes, in the 7th month we usually try to make you practice each and every sections which are important, so that you are aware and you have a kind of a muscle memory about the each sections, because there are 5 sections in the exam. And then it's really important that every day we are able to make you solve at least 2 or 3 sections of the exam. So every week you should be able to solve the all the 5 sections 2 times. Okay, आप एक दिन लीगल और इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है, मंडे को,
फिर ट्यूसडे को आप मैथ्स और लीगल कर सकते हो। फिर थर्सडे आप फिर से इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो। फिर फिर आप नेक्स्ट उसके बाद क्वांट हो गया, लॉजिकल हो गया, फिर से यू कैन रिवाइज ऑल द vocab. So the basic thing is that every day you should be trying to solve all the sections of the mocks. Okay, I'm not saying that you solve a mock uh, every day. That is not right by the 7th month, but you should be able to solve each section, and by the end of the 1 week you should be able to solve the whole mock. Okay, so you can solve one section each day, and in the 5 days you will be able to solve a mock, and your accuracy should be very high in this. अगर आप एक दिन में ही मॉक सॉल्व कर रहे हैं, एक दिन में एक मॉक सॉल्व कर रहे हो, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट अगर आप टाइम लेके एक ही सेक्शन सॉल्व कर रहे हो तो वो आपको काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, सो यस, क्वांट के सेशन ज़रूर रखिए, करंट अफेयर्स का रिवीजन रखिए, क्रिटिकल रीजनिंग पे भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ओके, सो यस, लेट्स सी द 8th and 9th. Okay, so what I would suggest, by this time आपको फंडामेंटल्स आते हैं सारे, आपको आपकी रीडिंग स्पीड भी अच्छी होगी, आपकी जीके, करंट अफेयर्स, क्वांट, इन सब में यू माइट हैव डन रियली गुड बाय दिस टाइम। ओके, ये जो आप देख रहे हो, ये सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका होगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सो यहाँ से आप हमारे बनाए जीके के क्वेश्चंस या जीके या करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस पे उसके रिलेटेड बुक्स ले सकते हैं हमसे, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होती है विद पैसेजेस, वो बुक आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद you can also work on, yes, difficulty face, become comfortable with yes. So once we are done with all this, in the last few months we have to start doing one mock every day. I would suggest one mock every day, and then an analysis of it next day. So yeah, you can do solve one mocks every 2 days. Okay, or if you are not able to solve it, you should be solving at least one mock every week by the 8th month. Okay, so ताकि every Sunday you should be solving a mock every Sunday. So जो बीच का गैप होगा फ्रेंड्स, आपको उन गैप में मेरे ख्याल से आपको उन गैप में मॉक का एनालिसिस करना चाहिए, और उसमें क्या मिस्टेक्स हुई, कैसे आपने चीज़ें गड़बड़ करी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, आ जाते हैं DI। सी, अगर आपके सारे सेक्शंस अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप किसी तरीके से अब मैथ्स पे थोड़ा सा और पकड़ बनाएं, मैथ्स के क्वेश्चंस और थोड़ा सॉल्व करें। यू विल फाइंड दैट it's going to help you a lot with 15 marks. 15 marks आएंगे आपके क्वांट से, so you are going to do really good. So I would suggest you कि आप हमारे से मैथ्स के क्वेश्चंस ले सकते हो, जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, and you can solve them, which is going to help you a lot. मैथ्स की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं DI सॉल्व करने के लिए,
आपकी पकड़ उन पे होनी चाहिए. So that is also a very important part. By the this phase, everything might be completed. Like you might have also completed the English portion, the legal also, and you might be also working on the DI part. Okay. लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग जो क्लैट में आती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट इफ़ यू आर रीडिंग अ लॉट एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स, और अगर आप हमारी क्लासेस कर रहे हो तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि लगभग 3 से 4 महीने में क्रिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग को ऑलमोस्ट हम लोग कवर अप कर लेते हैं. और द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि एक बार आपने चीज़ें समझ ली, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, पेपर्स लगा लिए, पास्ट ईयर्स लगा लिए, हमारे बनाए हुए वर्कशीट सॉल्व कर लिया, उनका रिवीजन कर लिया, तो ऑलमोस्ट सब कुछ इन्हीं सब में से आता है. एग्जाम में कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती है. लॉजिकल के पार्ट की बात कर रहे हैं अगर, तो ऑलमोस्ट इट्स बेस्ड ऑन द ऑल द कॉन्सेप्ट विच वी यूजुअली डिस्कस इन द क्लास. सेम गोज विद द लीगल, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि लीगल में वो कुछ आउट ऑफ द वर्ड पैसेज डाल देते हैं जो कि आप नहीं सॉल्व कर सकते हो. वो यूजुअली दीज आर फॉर लाइक टू ट्रैप स्टूडेंट्स. अगर आपने अटेम्प्ट करोगे और फिर आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, सो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है. सो आपको ये सब चीज़ें पता तो चलेंगी, लेकिन जितना ज़्यादा मॉक लगाएंगे उससे पता चलेगी. मॉक्स इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द क्लैट जर्नी. लेट्स सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट. So yeah, yes. So I would suggest 2 full mocks. Okay, we usually provide around 70 plus mocks. Okay, we usually provide 70 plus mocks. So by the month 10th, 11th, 12th, you will be given almost these many mocks, and then around for particular one subject, as far as I know, we have 50 worksheets for each class, for each section. Okay, so that becomes your 250 worksheets, around 100 sectional tests. Okay, and 30 vocab every day. So that might be somewhere around 3000 words each month. Okay, that is more than enough, but we are going to provide you all these in this 1 year journey. So आप देख सकते हो कि हमारी तरफ से तो बहुत सारा आपको रिसोर्सेज दिया जाएगा, एंड यू विल बी मेड टू डू इट. ओके, सो सेल्फ प्रिपरेशन और हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करने में यही अंतर है कि वी आर गोइंग टू हेल्प यू with the resources, we are going to help you with the time management, we are going to help you also make a schedule, and obviously अगर आपसे and also you will be pressurized enough to work hard. So because अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका एक ही रीज़न है कि we have to get a good rank. Okay, good all India rank, we have to get it. So that is the main purpose, the main aim जो हमारा है वो यही है. तो I would suggest कि आप इस चीज़ को समझिए कि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट लेते हैं जो कि आपको पूरे ईयर बिजी रखेगा. और अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 3 to 4 hours every day, 3 to 4 hours every day is going to help you a lot. Okay, so yes, these, see, in the last month we are going to not put many effort on you, but we will give you a lot of mocks. करंट अफेयर्स के टेस्ट होंगे, डेली करंट अफेयर के टेस्ट होंगे, मॉक का एनालिसिस होगा, एरर नोटबुक जो आपकी बनेगी
वी विल सी दैट ऑल्सो कि अगर अभी भी आप एरर्स रिपीट कर रहे हो कि आप नहीं कर रहे हो, वी विल सी दैट. So that is one of the basic thing which we have to see. Okay, next is uh, last month revision and revision. लास्ट मंथ हमें सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है. करंट अफेयर्स हमें सिर्फ लास्ट 11 मंथ्स के पढ़ने हैं. उसके बाद मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े उनको ही रिवीजन करना है. वी विल हैव लॉट ऑफ रिवीजन क्लास. लीगल में भी है सारे लीगल रीजनिंग के हम सारे फैक्ट्स जितने प्रिंसिपल्स होते हैं हम लोग सबको रिवाइज करेंगे एक हर क्लास में. वी विल डू अ लॉट ऑफ रिवीजन. सो लास्ट मंथ इज ओनली फॉर रिवीजन. आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. आप जो ऑलरेडी चीज़ें सॉल्व कर चुके हो, जो वर्कशीट्स कर चुके हो, सिर्फ उन्हीं को करना है. कोई भी आपको नई चीज़ पढ़नी नहीं है, सिर्फ रिवाइज करनी है. और जो चीज़ें आप पहले से सही करते हुए आ रहे हो बस उन्हें सही करना है. अगर उन क्वेश्चंस को भी आप लास्ट मंथ में गलत करने लगोगे देन यू आर गोइंग टू मेक अ बिग ब्लंडर इन योर एग्जाम. सो दीज आर द बेसिक थिंग. ओके, नेक्स्ट. सो लेट मी टेल यू कि हमें आना क्या चाहिए. ओके, एवरी सेक्शन इज डिफरेंट. ठीक है, क्लैट में जितने पांचों सेक्शंस आते हैं उनकी डिमांड अलग है, उनका नेचर अलग है. सो व्हाट वी वांट, व्हाट वी हैव टू स्टडी इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. और हर सब्जेक्ट की एक अलग डिमांड है. हर सब्जेक्ट एक अलग एक तरीके से आई कैन से दैट आप सबको एक जैसे प्रिपेयर नहीं कर सकते हो. सबकी अलग अलग डिमांड है. तो सबकी एक ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप हर सब्जेक्ट की एक अलग नोटबुक बनाएं. सो यू शुड बी हैविंग 5 नोटबुक्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ. ओके, आई यूजली सी बच्चे एक ही नोटबुक में सब लिखना शुरू कर देते. देन यू वोंट बी एबल टू फाइंड वेयर एंड व्हाट यू हैव रिटन एंड at which date you have written. So make a copy of English, legal reasoning, logical reasoning, quantitative techniques and current affairs. Different 5 copies. Okay, good enough size. Okay, where you are going to write the notes, the worksheet which we are going to give you every day. We will give you a worksheet. You have to paste it. Okay, ताकि आपकी वर्कशीट में एक जगह पे सारी हो जाए. ठीक है, वो कैप की जो शीट्स होती हैं जिसमें 30 वर्ड्स हम देते हैं, एवरी डे वी गिव इट. सो वो 30 वर्ड्स आपको हर दिन उस पर पेस्ट करते जाना है. ठीक है, उनके ऑपोजिट सिमिलर मे बी द सेंटेंसेज ऑल्सो विच यू हैव टू मेक. तो वो आपको उतना वहाँ पे करना ही पड़ेगा. ठीक है, अभी आ जाते हैं आपको क्या क्या आना चाहिए. सी बेसिक जो चीज़ें आपको आनी चाहिए वो कैप, इंग्लिश में पर्पस, इन्फेरेंस, टोन, मेन आइडिया. ठीक है, आर्ग्यूमेंट, how to read a passage, what are the reading techniques, how can you read a passage in a very good time, that is also one of the most important thing. Apart from that, in legal reasoning आपको लॉस थोड़े थोड़े तो आने ही चाहिए. बिल्कुल आपको पढ़ा होना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको आने चाहिए. इट शुड नॉट हैपन दैट यू आर रीडिंग समथिंग अबाउट द लॉ फर्स्ट टाइम in the examination hall only. But if you might have practiced principle facts and application and conclusion based questions, you will be able to do it even if you have not studied in the exam, but आपने practice कर रखा हो. Constitutional and rights based passages काफ़ी आते हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ोगे. मैं खुद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो अगर आप चाहो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो. और यू कैन रीड इन ऑलमोस्ट 15 to 20 क्लासेस. हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में डेली वर्कशीट्स के साथ सॉल्व करते हैं. एंड ऑलमोस्ट इन ऑल माई वर्कशीट आई गिव अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस. एंड if you compare it with the number of classes, almost 20, so it's around like 800 questions to 600 राउंड. इसके बीच के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा लॉ के, सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम डिस्कशन से. देन इसके साथ आपको मिलता है ढेर सारा एक तरीके से वर्कशीट्स के साथ साथ आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं.
सेक्शनल टेस्ट के साथ आपको ढेर सारे मॉक्स मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ऑलमोस्ट इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता है, जो जितना जितना पेपर में आता है वो ऑलमोस्ट इसी में से कवर्ड रहता है। देन लॉजिकल रीजनिंग, you also learn about logical reasoning, premises, conclusion, assumption, inference, okay, sentences which are going to make the argument strong, sentences which are going to make the argument weak, तो वो आपको आने चाहिए, ठीक है। ऑल्सो वर्किंग ऑन योर कैलकुलेशंस, रेशियो, परसेंटेज, ये सब डाटा इंटरप्रिटेशंस में यू कैन सी एक डाटा दिया जाता है, उस डाटा को आपको इंटरप्रेट करना रहता है। यूजुअली मैथ्स के 2 पैसेजेस रहते हैं डाटा डीआई के, ठीक है। तो ईच ऑलमोस्ट ईच इज अ लाइक इज अ डिफरेंट बेस्ड ऑन अ डिफरेंट टॉपिक। अगर ये परसेंटेज पे होगा तो ये रेशियो पे होगा, तो इस तरीके से ही रहते हैं मोस्टली। सो अगर आप वर्क करोगे तो 5 मार्क्स तो आराम से आप यहाँ से उठा लोगे, तो 10 मार्क्स तो ये रहते हैं। एक बार अगर आपने डाटा इंटरप्रिटेशन कर लिया तो ऑलमोस्ट फिर सारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली क्लैट में मैथ्स बहुत आसान कर दी गई है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आने लग गए, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता था कि क्वेश्चन गलत हो जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और आपको अगर डेली रीड करना है तो आप न्यूज़पेपर से, अगर आप जीके पढ़ रहे हो, मैगजीन से जीके पढ़ रहे हो, हमारे सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू कंप्लीट ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द जीके, जो कि हम लोग करवा ही देते हैं। सो दीज वर द बेसिक थिंग्स। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, ओके। सो यस, बस कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ 12 मंथ्स के अपने प्रोग्राम में, ठीक है। एरर नोटबुक क्या होती है और एरर नोटबुक में आप कैसे काम कर सकते हो। सो एरर नोटबुक is a notebook in which you try to write whatever mistakes you have done, and then you try to work on it, okay। and usually हमारे बच्चे जो भी एरर नोटबुक बनाते हैं हम उन्हें चेक करते हैं और उनके हेल्प करते हैं, ठीक है। सो कहाँ कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं आप उन्हें लिखिए, और क्या आपने उस क्वेश्चंस को का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है फिर भी वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो क्या क्वेश्चन का एप्लीकेशन नहीं कर पाए थे आप, एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस आप नहीं समझ पाए थे। अगर एप्लीकेशन समझ गए थे तो फिर गलती कहाँ पे हुई, ऑप्शंस नहीं समझ पाए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन समझ गए थे, एप्लीकेशन समझ गए थे, फिर भी आपने कॉन्सेप्ट का अप्लाई गलत तरीके से किया, तो यानी कि आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ो। यही एक बेसिक फंडामेंटल होता है चेक करने का कि आपकी गलती कहाँ पे हुई, आपने क्वेश्चन रीड सही से किया कि नहीं, आपने क्वेश्चन ही गलत तरीके से रीड कर लिया, वहां पे क्या नॉट पूछा था और आपने सबसे फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते ही टिक कर दिया, जो कि ऑब्वियसली गलत होता है, ठीक है। सो वी शुड ऑल्सो लुक दिस। लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट। yes, the last part is we have to also work on our accuracy। आप सारे ही क्वेश्चन टिक नहीं करते जाओ जस्ट बिकॉज आपको अपना अटेम्प्ट बढ़ाना है। 110 प्लस तो अटेम्प्ट होने ही चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक अ रियली गुड, बट आपकी एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट 80% होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर 100 क्वेश्चंस कर रहे हो तो 80 तो सही होने चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो द थिंग। ऑल्सो लाइक अगर आप 110 कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि इट शुड बी मोर देन 80%, इससे बिलो नहीं होनी चाहिए। डोंट थिंक 80% होनी चाहिए, इट्स गुड इफ इट्स 95%, ठीक है। टॉप 100-200 बच्चों की 95% ही एक्यूरेसी रहती है। टाइम, यू शुड बी मैनेजिंग द टाइम, यू शुड ऑल्सो सी वट एवर सेक्शंस यू आर वर्किंग, एंड मिस्टेक्स ऑल्सो, so see whatever mistakes you are doing you should also see that, okay। so these are the basic things जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अभी आ जाते हैं yes। so
बाय द एंड ऑफ दिस वी कैन से दैट हमारा को कुछ बेसिक हैबिट्स जो होनी चाहिए, न्यूज़पेपर एक चलेगा, एक ही मंथली करंट अफेयर की बुक होनी चाहिए, ठीक है, और वन रिवीजन पैटर्न ही फॉलो करना चाहिए. एवरी डे वी हैव टू प्रैक्टिस ऑल द नेक्स्ट 12 मंथ्स, एवरी डे वी हैव टू प्रैक्टिस एंड फाइंड द राइट ऑर्डर. ओके, आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है. आप लीगल में कंफर्टेबल हो तो आप लीगल पहले करो, आप मैथ्स में हो तो मैथ्स में कर लो, अगर आप इंग्लिश में हो तो आप इंग्लिश में कर लो, बट make a order which is really good for you and follow that only from the starting of your journey. Okay, it's better, जितना जल्दी आपको पता चल जाएगा उतना अच्छा रहेगा. Okay, analysis of mocks is very important and you have to work on your basic understanding of the concepts. So this was the last. स्टूडेंट्स अगर आपको और भी किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो यू कैन टॉक टू अस. क्लैट IQ की वेबसाइट से यू कैन रीच टू अस. आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्लैट की जर्नी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट द टाइम इस बैच को हम लोग बस शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, तो ये 12 मंथ्स का कोर्स रहेगा. तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ज्वाइन हो अभी से, तो आप अपने पीयर्स से थोड़ा पहले से ही प्रिपरेशन में आ जाएं, एक रिदम में आ जाएं. सो नेक्स्ट 12 मंथ्स अगर आप मिल के तैयारी करेंगे तो एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है एग्ज़ाम को. और डेफिनेटली आप NLS, नालसार, NLU दिल्ली, हम लोग जो भी चीज़ें करेंगे उससे एलिट में भी आपको काफ़ी आसानी होगी. क्लैट हैज़ ऑल्सो बीइंग एक्सेप्टेड इन अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो. सो अगर आप यूपी से हैं और आप LU में अपना टारगेट कर रहे हैं तो क्लैट 2028 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि this year also LU also have taken admission on the basis of CLAT score. So there were 350 seats, all 350 were taken from the CLAT exam. So this is also an important part, and so I wish you all the best, and let's start your preparation with us and जितना जल्दी हो सके. So thank you बच्चों. मेरा नाम सूर्यांश है and I have done my BLLB from HNLU Raipur and I had cracked CLAT in 2020. So good day, all the best, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए. You can reach to us through our website clatiq.com and you can connect with us and हम लोग मिलके प्रिपरेशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.